Good evening, everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Yes, what we have discussed in last class about the UC paper and the seed syllabus, right? Brochure वगैरह discuss किया था ना हमने? Yes, ma'am. All right. So today we are going to start a topic. ठीक है? जो लोग last class में, how many people are there who have not attended the last class? Ma'am, Indrajit. Okay, Indrajit. All right. So, ठीक है, we have discussed the brochure of the seed and UC, the paper pattern and the syllabus and some of the questions we have discussed in the first class. All right, so that is not connected with the today's class. So today will be the new topic, so we can start today. So yes, so today's topic is polygons. All right. So in this starting, I'll be giving you some work. So what you have to do, you have to take your copy. Please, all of you make a separate copy for these classes, that is USEED and SEED special. Take the page and divide that paper into 3 parts. Okay, let me draw how you have to divide the paper. So for example, this is your paper of your notebook. So you have to divide in this way. So the topic is polygons. Today's topic is polygons. So you have to, 1 minute. Yes, 1 minute. Yes. So, for example, this is your notebook, right? So you have to divide this notebook into 3 equal parts. Not 3 equal parts, but it is around 1 by 2, and then other part you can divide it by 1 by 4 and 1 by 4. Here you have to write the shape. Here you have to write the area, and here you have to write the perimeter. ठीक है? Shape में सबसे पहले you have to write the triangle, any type of triangle. 1. Second is isosceles triangle. 2. Third is equilateral triangle. Fourth is a square. Fifth is a rectangle. Sixth is parallelogram. Seventh is a rhombus. Eighth is trapezium. Ninth is circle, and the 10th is semicircle. So you have to fill this, है ना? By using pencil, you have to fill the area and perimeter, area, perimeter, area, perimeter. I am giving you 5 minutes, and after that, I'll be telling you all the options, all the answers, right? Ma'am, actually, this is done. This is done? Yes, ma'am.
ओके, इट मींस ये वाला पार्ट हमने कर लिया है, सो कुछ क्वेश्चंस भी हमने करे होंगे। Yes, ma'am. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मुझे बता देना। हैव यू डन these क्वेश्चंस? ये वाले क्वेश्चंस करे हैं आपने? Yes, ma'am. ये सारे हो चुके हैं आपके? No, ma'am. No, ma'am. हम सारे नहीं हुए। ये वाला हो गया होगा, आई नो, हाँ, ये वाला हो ये- गया, आगे ये सारे हो चुके होंगे। हाँ हाँ। हैव यू कंप्लीटेड दिस वन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया था लास्ट क्लास में। Yes, ma'am. ऑलराइट, ये भी कर लिया होगा फिर। Ma'am, we were doing counting surfaces topic. वी वर डूइंग काउंटिंग, तो ये वाला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑलराइट, ओके, सो गिव मी अ मिनट, आई विल शेयर दैट पीपीटी। Excuse me, ma'am. यस मैम, जो चैप्टर एरिया एंड पेरीमीटर वाला है, मैम वो संडे वाली क्लासेस में कवर हुआ है? आई थिंक अगर आपकी क्लास आज हुई है तो फिर सैटरडे ही हुआ होगा, लास्ट सैटरडे हुआ होगा कंप्लीट। ओके। ओके, सो हैव वी डन टिल, ओके, ये क्वेश्चन नहीं करा होगा हमने। I have not started the topic yet. नॉट स्टार्टेड द टॉपिक, Yes, ma'am. सरफेस काउंटिंग शुरू नहीं किया, ठीक है। सो दिस इज अनदर टॉपिक ऑफ द स्पेशल एबिलिटी, ठीक है, स्पेशल एबिलिटी, दैट इज सरफेस काउंटिंग। Yes. Now, what do you mean by a 3D solid? 3 dimension solid को क्या क्यों बोलते हैं हम? किसको बोलते हैं 3 dimension solid? मैम, ये काउंटिंग लास्ट क्लास 4 सितंबर वाले में आपने स्टार्ट करा दिया था। अरे भाई, अच्छा, कितने लोगों का ये स्टार्ट हो चुका है ये बताओ? रेज योर हैंड। Ma'am, I मानसी, just opened the recording. We have done till question number 10th. बट काफी बच्चे बोल रहे हैं कि उनका स्टार्ट नहीं हुआ है। Yeah, ma'am. Can you done do it. it from the starting? Like, Yes, ma'am. अच्छा देखो, ठीक है, जिसका हो चुका है ना, आफ्टर आई थिंक 1 hour यू कैन ज्वाइन द क्लास, बिकॉज 1 घंटे लग जाएंगे 10 क्वेश्चन करने में, तो और आप ज्वाइन करके देख लेना, अगर रिपीट हो रहा है सो यू कैन ज्वाइन इन द नेक्स्ट क्लास देन, ठीक है, क्योंकि आई थिंक मोर देन हाफ पीपल हैव नॉट स्टार्टेड दिस टॉपिक, ठीक है। सो मैं स्टार्टिंग से वाला करवा रही हूँ, जिसका रिपीट हो रहा है, इफ यू वांट टू रिमेन इन द क्लास यू कैन स्टे इन द क्लास, अगर आपको कुछ और करना है सो यू कैन डू दैट आल्सो, ऑलराइट।
Chalo. So we were discussing about this solid. Solid. What do you mean by the word solid or the form? Form या solid का मतलब क्या? Yes, tell me. What do you mean by the word solid? Solid क्या होता है? Or the three dimension? What do you mean by the term three dimension or the 3D? I hope I am audible clearly. Objects that are real are 3D. Yes, 2D objects that are real, or you can say that is having a three dimension. Now, if we take the example of a cube, right? So square में कितने dimensions होते हैं? Square में आपके दो dimensions होते हैं. एक होता है x और एक होता है y. There is no third dimension. For example, if you take a paper, एक पेपर में अगर हम देखें, so we ignore the thickness of the paper. So paper we can say that it is a two dimension. The length is there and the width is there. But we combine 100 papers and we make a book. So book कैसे बनी? Book आपकी ऐसे बन गई. Right? So this is a book which is made by 100 papers. ठीक है, 100 पेपर की एक बुक बनी. Then it has created a third dimension, that is depth you can say or the height. So if we talk about the cube, so cube में आपके तीन dimension होते हैं. One is x, one is y and the third is z. ठीक है, but और इसमें अगर हम बात करें surfaces की, so this is known as surface. It is known as surface. इसको surface बोलेंगे. दूसरी surface आपकी ये है, तीसरी surface आपकी ये है, चौथी आपकी इधर वाली है, पांचवी ये है और sixth one is at the bottom. ठीक है, तो इसका मतलब है एक सरफेस से दूसरे सरफेस में कब चेंज आ रहा है? व्हेन आई एम चेंजिंग द एंगल. ठीक है, जब एंगल में चेंज आता है इट मींस आई एम चेंजिंग द सरफेस. बट लेट मी टेक सम अनदर एग्जांपल. इट इज माय पेपर and I rolled that paper and I created a cylinder. So cylinder को मैंने जब create किया, so how many surfaces are there? 3. 3 है ना? Why? Because it is rolled. यहाँ पे there is no such kind of edge. यहाँ पे कोई एंगल में चेंज नहीं आ रहा. दिस इज कंप्लीट वन सरफेस. और दूसरी ये है, तीसरी आपकी ये है. So 3 surfaces are there. So we'll take some of the questions. Okay. So I'll ask you all to make all these objects and write the faces, edges and vertex. ठीक है, फेस हमने डिस्कस कर लिया है. एज आपको पता है, दिस लाइन इज एज. वर्टेक्स इज द पॉइंट in which all the edges and all the faces meet. So this is vertex, this is edge and this is face. Please make these regular polyhedrons in your paper. I'll give you 5 minutes for this.
Yes, you have completed this one, regular polyhedrons. Yes, ma'am. Okay, so हमने ज्योमेट्री पढ़ा था, वहां पे we have talked about the polygon. Polygon के बारे में पढ़ा था. Can anybody tell me what do you mean by the word polygon? Ma'am, any closed figure. Only a closed figure is known as a polygon. Ma'am, having minimum 3 sides. Okay. ठीक है, regular polygon किसको बोलते हैं? What do you mean by the word regular polygon? Having all equal sides. Those minimum. Having three all sides the equal. equal sides, right? Yes, yes. तो यानी कि जैसे equilateral triangle होता है, that is a regular polygon, or the square is a regular polygon. ठीक है? Yes, so square is known as the regular polygon. So on the same way, if we talk about the regular polyhedrons, polyhedrons means the solids which are having the same identical faces. Identical faces, if we talk about the cube, cube में कैसे faces होते हैं? All Square. these faces are squares, right? But अगर rectangle की बात करें, so all the faces are not the squares. Some are the not the rectangles. Sorry, cuboid की अगर हम बात करते हैं, so some faces are the rectangles and some faces are the squares. ठीक है? इसी तरह यहाँ पे अगर हम regular polyhedrons की बात करें, तो first one is the tetrahedron. Tetrahedron, as the name is suggesting, it means tetra. Tetra means 4. So 4 faces are there, but the face is triangle. ठीक है? Second one is the cube. Cube in which all the faces are squared. Faces are 6. Edges और vertex को इतना याद करने की जरूरत नहीं है, but you should know about the number of faces. आपको faces learn होने चाहिए. The next thing, if we talk about that, is octahedron. Octa means 8. 8 faces are there, but each face is a triangle. Next is dodecahedron. Dodeca. Deca means 10. Dodeca means 12. So 12 faces are there, but the faces are the pentagon. Regular pentagon face is there. Next one is the icosahedron. Icosahedron means 20 faces are there, and each face is triangle. Triangle का face होता है, and the number of faces are 20. So this you have to learn. You have to learn only the faces. मैम Yes. मैम एक्चुअली मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, आपने बोला क्लास में पूछने के लिए. Okay. Okay. Yes. 1 minute. Okay, if you can see the screen, so Pratik, वो हम last में discuss करें 7:30 से. श्योर मैम. Okay. एक बार मुझे याद दिला देना 7:30 पे. All right. क्योंकि सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, because people who are there who are attending this as first class,
right? So if you can see this screen, so various objects are there: sphere, cube, cone, cylinder, rectangular prism, triangular prism, hexagonal prism, rectangular pyramid, triangular pyramid. You all have to write a number of surfaces in each of these solid. आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सर्फेसेस लिखने हैं इन सॉलिड से रिलेटेड. Okay, give me a minute. I have unshared this screen. 1 minute. Write the number of surfaces in each of the solid. Ma'am, can you please repeat the question? Yes, I am asking to write the number of surfaces in each of the solid. For example, the sphere, cube, cone, cylinder, rectangular prism, triangular prism, hexagonal prism, rectangular pyramid, and the triangular pyramid. Yes, I hope this is completed. हो गया सबका? Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना, दिस इज वेरी इजी. स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर में ओनली वन सरफेस इज देयर, क्यूब 6 surfaces, cone 2 surfaces, cylinder 3 surfaces, rectangular prism 6 surfaces, triangular prism 5, hexagonal 8, rectangular pyramid 5 and triangular pyramid 4. ठीक है, किसी को डाउट है कि कैसे मैम ने इतना जल्दी बता दिया? आप सरफेस देखोगे आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पे दो टर्म है, वन इज द प्रिज्म एंड द सेकेंड वन इज पिरामिड. नाउ प्लीज एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिज्म एंड अ पिरामिड? Ma'am, basically pyramid has one base and prism has two. यस, बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास मान लो ट्राइंगल है एज ए शेप, और इस शेप को मैंने एज इट इज एक्सटेंड किया थर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका प्रिज्म. इसको हम प्रिज्म बोलेंगे. बट
अगर हम इसी ट्राइंगल को एज इट इज ना एक्सटेंड करके एक पॉइंट के थ्रू एक्सटेंड करें तो ये क्या बन जाता है? पिरामिड। दूसरे ऑप्शन से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर को हमने एक्सटेंड किया तो ये क्या बन गया? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज अ 3D शेप, इसको आप प्रिज्म भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड देन अगेन हमारे पास स्क्वायर है और हमने स्क्वायर को एक्सटेंड किया एक पॉइंट की तरफ, ऊपर की तरफ किया बट एक पॉइंट की तरफ एक्सटेंड किया, सो दैट बिकम्स अ पिरामिड, है ना। अब इसी में मान लो मैं अलग कलर से आपको प्रिज्म दिखाऊंगी तो ये आपका प्रिज्म होता और ये आपका रेड वाला पिरामिड है, येलो वाला प्रिज्म है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है प्रिज्म और पिरामिड में? प्रिज्म Yes, ma'am. देखो यहाँ पे स्क्वायर एक्सटेंड किया जा रहा है, ट्राइंगल एक्सटेंड किया जा रहा है, यहाँ पे नीचे स्क्वायर है बट इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स वन पॉइंट। यहाँ पे ट्राइंगल है और एक ही पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पे हेक्सागन शेप है और उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। सो देयर इज वन टर्म दैट इज प्रिज्म एंड देयर इज वन टर्म दैट इज पिरामिड। अब फॉर एग्जाम्पल इन योर exams they gave you questions related to surface counting in terms of prism. प्रिज्म के रेस्पेक्ट में आपको क्वेश्चंस देते हैं कि आपको नंबर ऑफ सर्फेसेस निकालने हैं। तो फॉर्मूला हम अगर हम जनरेट करना चाहें प्रिज्म से तो कैसे कर सकते हैं? ओके, सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल था। ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो कितने सरफेस है? एक, ये दो और ये तीन। ट्राइंगल की जो ये वाली लाइन है, ये वाली जो एज है, उसको हम बोल सकते हैं कि एक्सटेंड करने के बाद ये सरफेस बना रही है। कैन वी कॉल दिस? ट्राइंगल की ये वाली जो लाइन है एक्सटेंड करने के बाद ये वाली सरफेस बना रही है, और ट्राइंगल की ये वाली जो एज है वो एक्सटेंड करने के बाद ये वाली सरफेस बना रही है। लेट्स सी इन द स्क्वायर, ये एज ये सरफेस बना रही है, ये एज ये सरफेस बना रही है, ये एज ये सरफेस बना रही है, और ये नीचे वाली एज नीचे वाली सरफेस बना रही है। यानी कि शेप में जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ सरफेसेस होंगे अराउंड में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, ma'am. इसका मतलब प्रिज्म है तो अराउंड, सॉरी ट्राइंगल है तो अराउंड में 3 सरफेस, स्क्वायर है तो अराउंड में 4 सरफेस। बच कौन कौन सी सरफेस रही हैं? एक ये वाली सरफेस और एक पीछे वाली सरफेस, यानी कि 4 + 2, और ट्राइंगल में एक ये वाली सरफेस आपकी पीछे की ट्राइंगल की बच रही है और एक आगे की बच रही है, यानी कि 3 + 2। So can we derive a formula n+2 for prism? प्रिज्म में हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं n+2। Yes, tell me. Yes, ma'am. And where n is the number of sides of the shape. कौन सा शेप? जिसको एक्सटेंड कर रहे हैं। n+2 is the formula for the number of surfaces in any of the prism. क्लियर है सबको ये? Yes, पिरामिड ma'am. की बात करते हैं। पिरामिड में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? पिरामिड में बस ये डिफरेंस आ रहा है दैट जो 2 सरफेस हम ऐड कर रहे हैं ना, उनमें से बस एक नहीं है। n तो उतना ही रहेगा और इसमें जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज n+1। यानी कि ये जो है इसमें आप क्या करोगे? 3 + 1 4 टेट्राहेड्रॉन, इसमें 4 + 1 5 स्क्वायर पिरामिड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
बाकी क्वेश्चन करते हैं, जो डाउट होगा फिर वहां पे क्लियर हो जाएगा। किसी को क्लास में डाउट होता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।
Okay, so please all of you write about the prism and pyramid, है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया है. Write about the prism and pyramid. Make a pyramid, a rectangular pyramid, a pentagonal pyramid, and a hexagonal pyramid. Try to make a hexagonal pyramid, pentagonal pyramid, and a square pyramid. Yes, so what I said, you have to make a pentagonal pyramid. Yes, and then try to join. So this is what? Pentagonal pyramid. And then what I said, hexagonal pyramid. Okay, this is hexagonal pyramid. Then if we talk about pentagonal prism, so this is pentagonal prism, right? Now tell me the value of number of surfaces each of them. Yes, tell me the value of number of surfaces. So this is Ma'am, can you repeat what you said? asking number of surfaces for these solids. Okay. Yes, this is n plus 2. And we already discussed the formula for the prism. That is n plus 2. N is number of sides. So pentagon में 5 है. So the answer will be 6. Yes, ma'am.
Yes. So we can apply formula for the pyramid, that is n plus 1, right? So iska jo formula hoga, that is n plus 1, because this is pyramid, this is pentagonal pyramid, and this is hexagonal pyramid. So n plus 1 and n plus 1. Is it clear? Sabko samajh mein aaya ye? Yes, ma'am. Chalo. Now I'm giving you one question, so you all have to try that. So for example, you have the letter that is L. ठीक है? L है. L को I'm yes. So for example, I'm having alphabet L. Yes. And I have created the 3D form of L. Okay. Now the figure 1 is converted into figure 2. Figure 1 आपका figure 2 में convert हो रहा है. So for example, I have the word that is love. I'm screen So showing. अगर जो love है, Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. The screen is not Totally. visible. Your voice is breaking. okay, 1 minute. Is it visible or not? Yes, ma'am.
Class, can you hear me? Yes, ma'am. Am I audible? Yeah, ma'am. Yes. So just wait for 5 minutes. Ma'am got disconnected. She's connecting again. Okay. Yes, so I was talking about the question that is, for example, you have the letter that is L, right? And if I convert this alphabet or the 2D shape into a 3D object, ठीक है, इसको मैं 3D object में अगर मैं convert कर देती हूँ, so it has been converted like this, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, extrusion. This process is known as extrusion. And if I take the word that is love, so how many surfaces would it have when the whole word is converted into D part? Are you getting this question or not? Yes, ma'am. Yes, Sure. ma'am. इसको convert करके you have to tell me how many surfaces are there. Ma'am, 34. 34. All right. What about the other students? Ma'am, 33. 33. Yes. और बाकी बच्चों के क्या आंसर्स आ रहे हैं? Yes. So if I take this one, देखो लिखेंगे कैसे? O को तो हम ऐसे लिखेंगे ना? So what formula we will be going to apply? The prism formula. ठीक है? Prism formula इसमें apply करो, you can get the easily answer. Ma'am, it's 34. 34. All right.
Yes. So if we see in the letter that is L, so यहाँ से 1 2 3 4 5 6 n plus 2 6 plus 2 is 8. ठीक है? Then 1 2 sorry 1 and 2, not this one. 1 and 2, 2 plus 2 is 4. 1 2 3 4 5 6 7. 7 plus 2 is 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 plus 2 is 14. Add this and you will get the answer. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना था आपको. Okay, try this one. Try this question, everyone. Again, same type of question is there, right? If B is an extruded form of A, how many surface will the extruded form of C will have? This question has been came into seed 2017. सीड में ये ऑलरेडी आ चुका है और इसी टाइप का क्वेश्चन है ये वाला जो अभी मैंने आपको करवाया था. ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2 से 4 बार आ चुके हैं. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में भी आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. सो इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली अप्लाई एंड फाइंड आउट द आंसर. सो टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन प्लीज. मैम 66. All right, 66. One person gave the answer 66. What about the others? 66, yes. Okay, 56. तो 56 किसी ने आंसर दिया है, किसी का 66 आ रहा है. How we can solve this question? You have to see one thing. First, you have to analyze that what kind of shape it will make. So ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, like this way. 3D अगर ये बनाना है मुझे तो ये कुछ ऐसे बनेगा. मैम 47. 47, all right. 3D की बात करें तो ये 3D में कुछ ऐसा बनता हुआ रोटेट करके इधर आएगा, है ना.
because I have the screen, I can use pen on my screen, so I can tell you. But वहां पे because that is a computer based paper, not the pen paper based, so आपको उसमें कुछ भी लिखने का या कुछ भी ड्रॉ करने का टाइम या मौका नहीं मिलेगा. So it's better to आप analyze करो, है ना, आप imagine करके you can find out the answer. So what the best way to do this thing? क्या करेंगे हम इसमें अप्लाई करेंगे which formula? Prism formula we can apply or not? क्या हो रहा है, एक शेप को एक्सटेंड कर रहे हैं ना थर्ड डायमेंशन में. एक्सट्रूजन मतलब क्या, थर्ड डायमेंशन में एक्सटेंड कर रहे हैं. और ये शेप में कितने लाइंस हैं आपको n कैलकुलेट करना है. बस अगर आपने n कैलकुलेट कर लिया, आप +2 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा. n कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये y है, y इज रिपीटिंग 6 टाइम्स. y क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. इट मीन्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 एंड दिस इज 9. तो ये जो पार्ट है ये आपका रिपीट हो रहा है कितने बार, 6 टाइम. 54 आ गया. ये क्या है आपका, ये n है, इसमें आप 2 ऐड कर दो, so you will get 56. Is it clear to everyone? Clear है या नहीं है? Yes, ma'am. चलो भाई, नेक्स्ट आते हैं. ट्राई दिस वन. Ma'am, 42. Ma'am, 42. Okay, 42. देखो, now this question is quite different from the earlier one which we have done before, है ना. इसमें आप कोई प्रिज्म का फॉर्मूला नहीं लगाओगे, है ना. इसमें ये क्वेश्चन अगेन आपकी सीड में आया हुआ क्वेश्चन है. what you have to do, you have to imagine this solid. आपको इसको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि ये सॉलिड ओवरऑल कैसे दिखेगा हमें, है ना. So there are 3 types of surfaces in this kind of solid. One is triangle, another one is rectangle and the third one is the square. 3 टाइप के आपके surfaces हैं इसमें. ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ये है, ट्राइंगल कितना है. अच्छा, एक और चीज ध्यान दो, इट कैन बी इमेजिन्ड एज ए क्यूब. इसको थोड़ा सा क्यूब से आप रिलेट करके देखो तो आपको फील होगा कि एट एवरी कॉर्नर्स ये ट्राइंगल का कुछ इसमें टेट्राहेड्रॉन टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है. लग रहा है कि नहीं. एवरी कॉर्नर पे, एट ईच कॉर्नर देयर आर ट्राइंगुलर सरफेसेस, है ना. कुछ ऐसा है. आप अगर इसको प्रॉपरली विजुअलाइज कर पा रहे हो, इट मींस ये जो पार्ट है ये कितने बार रिपीट हो रहा है, 8 टाइम्स. 8 बार ये रिपीट हो रहा है. तो एक पार्ट में कितने ट्राइंगल्स हैं, 1 2 एंड 3, 3 हैं. और इसको आप क्या करोगे, 3 into 8, 3 into 8 that is 24. Now the second type of shape is a rectangle which I can see in this strip and I can see in this strip. ये strip में मुझे ये दिख रहा है. अच्छा, एक strip में अगर हम बात करते हैं, एक strip की अगर हम बात करते हैं,
सो एक स्ट्रिप में कितने रेक्टेंगल्स हैं? 4। ये देखो, एक ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, एंड इधर जो दिख नहीं रहा है बट इट इज प्रेजेंट, दैट इज 4। और स्ट्रिप कितनी है? 1, 2 और 3, 3 स्ट्रिप। और कोई भी स्ट्रिप में रेक्टेंगल्स क्या एक दूसरे से मतलब सेम नहीं है, अलग अलग रेक्टेंगल्स हैं, ऐसे ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है क्लास में? Yes, ma'am. So 4 into 3, that is 12. 12. 4 into 3, 12. अब आते हैं लास्ट स्क्वायर पे। सो स्क्वायर अगर आप देखो इस स्ट्रिप में कितने स्क्वायर्स हैं? 4 हैं, 3 and 4। ठीक है, दिस इज 3 and दिस इज 4। इन चारों को अगर हटा दो तो इन चारों के अलावा एक ये स्क्वायर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, दैट इज 6। टोटल 6 नंबर ऑफ squares are there. So ये 4 plus 6, 10, 10 plus 2 is 12 and then 42. So 42 is the correct answer. I hope this is clear to everyone. मैम एक बार Yes. रेक्टेंगुलर फेसेस काउंट करना फिर से बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। Yes, someone else was asking something. Any girl was saying something. Ma'am, I can understand the rectangle वाला part. But square नहीं समझ में आया। Square समझ में आ गया लेकिन rectangle नहीं आया। रेक्टेंगल नहीं आया। ऑल राइट, चलो सबसे पहले ट्राइंगल देखते हैं। पहले तो आप इस सॉलिड को इमेजिन करना देखो। इमेजिन करो कि ये सॉलिड चारों तरफ से आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब ये हर तरफ से ऐसे ही दिखेगा। हर तरफ से दिखने का मतलब है जैसा यहाँ बन रहा है ऐसा, वैसा हर कॉर्नर पे बन रहा है, ऊपर भी बन रहा है, नीचे भी बन रहा है। ठीक है, और अगर नीचे भी बन रहा है तो ये 4 ऊपर बन रहे हैं और 4 नीचे बन रहा है। ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। इसका मतलब 1, 2, 2 and 3, 1, 2 and 3। सो ये 3 जो जैसा टेट्राहेड्रॉन टाइप का स्ट्रक्चर है ना, वो 8 जगह पे बन रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। 8 जगह बन रहा है तो आप क्या करोगे? 3 into 8 कर दोगे, विच इज 24। तो ये कौन से सर्फेसेस निकले? ट्रायंगुलर सर्फेसेस निकले। नेक्स्ट इज द रेक्टेंगल। ट्रायंगल काउंट कर लिया, अब रेक्टेंगल काउंट करते हैं। तो रेक्टेंगल कहाँ कहाँ है? एक इस स्ट्रिप बन रही है जो पूरी फॉलो कर रही है ऐसे, एक ये स्ट्रिप बन रही है, और एक ये स्ट्रिप बन रही है। 3 स्ट्रिप्स हैं। एक स्ट्रिप में 4 रेक्टेंगल्स हैं, 2 दिख रहे हैं, 2 नहीं दिख रहे हैं। हर स्ट्रिप की मैं बात कर रही हूँ, 2 दिख रहे हैं, 2 नहीं दिख रहे हैं। बट इन ईच स्ट्रिप देयर आर 4 rectangles. And how many strips are there? 3. So 4 into 3. नेक्स्ट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो भाई स्ट्रिप में ही प्रेजेंट है। तो 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, 4 के बाद ये 5 है और ये 6, तो 6। इसके अलावा कोई भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अलग अलग स्ट्रिप में कैलकुलेट मत करना क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है इस वजह से। तो ये आ गया 42। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चलो, the boy who was asking this one to repeat me, now is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इमेजिन करना है। आप जब सॉलिड इमेजिन कर लोगे आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। नाउ ट्राई दिस वन। प्रतीक, आपने जो क्वेश्चंस भेजे थे आप प्लीज मुझे हाय लिख के भेजिए। प्लीज पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप सो दैट आई कैन सी द क्वेश्चंस। ओके मैम।
Ma'am, 24. All right, so one person gave me answer 24. Ma'am, 39. Yes. 39, 24, all right. I'm 39. 39, ठीक है. जैसे जैसे टॉपिक कवर होगा आप लोग को सेल्फ लाइक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाने हैं, ट्राई करने हैं, और अगर डाउट आता है तो आपको ग्रुप में भेज देना है. ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. All right. So again, if you see, you can apply prism formula for these flanges, है ना. देखो आपका जो सॉलिड है वो एक ही सॉलिड है, बट थोड़ा ओरिएंटेशन बदल दिया गया है ना, अपसाइड डाउन कर दिया गया है सेकेंड फिगर में. तो एक फ्लैंज में अगर देखोगे सो 1 2 3 4 5 and 6. So 6 plus 2 is 8. 8 into 3. Why I'm multiplying it by 3? Because 3 flanges are there. So 8 into 3 is 24. Then अब central part हमारे पास बचा है जिसको हम add करना चाहेंगे for counting the surface. तो एक part में कितना है? 1 minute. Yes. So this is 1, 2, not this one, 2, 3 and 4. So these are the surfaces. These are the surfaces which we have to multiply it by 3. ये सबको समझ में आया? रेड वाला क्यों हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से? बिकॉज 3 है, 1 2 और 3, इस वजह से. राइट. नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे? जो ऐसी सरफेस है जो सिर्फ एक बार आई है. फॉर एग्जाम्पल 1, ठीक है, 2 एंड 3. ये 3 सरफेसेस हैं जो सिर्फ आपका एक एक बार आई है. प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा? 39. इज इट क्लियर? सबको क्लियर है ये? Yes, ma'am. चलो भाई. So now we are going to do some of the questions related to geometry. ठीक है. I'll be sharing the screen, है ना. You all have to try this question. Yes, try this one.
Yes, so how to solve this question? कैसे solve करेंगे बताओ? Yes, anyone? मैम 47. अब आंसर तो मुझे नहीं पता है, बट ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। चलो, इसमें क्या है, 3 आपके, नॉट 3 बट 4 सेमी सर्कल्स आर गिवन। एक आपका ये सेमी सर्कल बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक बड़ा वाला ये बन रहा है और एक ये छोटा वाला बन रहा है। आपको इसमें कुछ नहीं दिया है, आपको जस्ट इसमें दिया है द रेडियस, आई थिंक द डिस्टेंस इज गिवन। डिस्टेंस यहां से यहां तक 5 दिया है, राइट? यस मैम। यस, है ना, यहाँ से यहाँ ठीक। तक 5 दिया है और ये यहाँ से यहाँ तक 3 दिया है। ठीक है, चलो बताओ भाई कैसे सॉल्व करेंगे? No, my answer is incorrect. भाई अच्छा, पहले आपने 5 रेडियस ले लिया था। Yeah, ma'am. Actually, I have not seen that point. ठीक है। मैम 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88, चलो प्रतीक बताओ आंसर 88 है? मैम आई डोंट नो द आंसर। यू डोंट नो द आंसर, ऑल राइट, ठीक है। यस, चलो ठीक है। इसमें आपको रेडियस नहीं दिया है और उस वाले सर्कल का सेंटर नहीं दिया हुआ है, राइट? इसका भी रेडियस नहीं पता है, इसका भी रेडियस नहीं पता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जब रेडियस ही नहीं दिया है तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो यू हैव टू एनालाइज दिस। एनालाइज मतलब इसको देखो, इसको समझो कैसे बना होगा ये, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू एज्यूम दिस डिस्टेंस एज 3, तो हम देखने से, आप देखो जस्ट इसको, ऐसा लग रहा है कि ये आपका 2 होगा और ये आपका 1 होगा। बोलो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही सॉल्व करने होंगे, वेयर यू हैव टू सी द फिगर एंड जस्ट यू हैव टू एनालाइज डिस्टेंस और उससे आपको आंसर निकालना होगा। सो दिस इज 2 एंड दिस इज 1, अगेन दिस इज 1 एंड दिस इज 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 4, दिस इज 3, ओ सॉरी दिस इज 2। ये समझ में आया कैसे मैंने करा? यस मैम। ठीक है, आप बोल सकते हो कि मैम यहाँ पे कैसे पता चला आपको कि ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 1 है? तो आपको थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी और इसको एनालाइज करना पड़ेगा। इफ आई डिवाइड दिस डिस्टेंस इनटू 3 पार्ट्स, तो ये आपका एक पार्ट होगा और ये आपका 2 पार्ट होगा। ये आपको फिगर को देख के समझना होगा, और कोई बेटा यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम फाइंड आउट कर लें डिस्टेंस। आपको जस्ट एनालाइज करना होगा। डेसिमल में वो देंगे नहीं, इतना तो आप मान के चलो। ऐसा नहीं होगा कि ये डिस्टेंस 1.9 होगी और ये 1.1 होगी, ऐसा नहीं है। आपको ऐसी ही वैल्यूज देंगे जिसका आपका आंसर निकाल पाओ। तो ये यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 2, है ना, दिस इज अगेन 1 एंड दिस इज 4। तो क्या करोगे आप, इस डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो पहले। तो ये टोटल कितना हो गया, 4 + 4 8 9 10 11 12 13 14 7, इसका रेडियस है 7, है ना। सो पाई r स्क्वायर बाई 2, तो पाई बाई 2 कॉमन ले लो, r स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस, इसको प्लस करना है ना, इसमें से इसको प्लस करना है, तो प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पाई बाई 2 49 प्लस 1 माइनस 16 माइनस 4, पाई बाई 2 50 50 minus 20 is 30, 15 pi. 15 pi is the answer. Is it clear? कैसे सॉल्व किया मैंने इसको? यस मैम। जस्ट एनालाइज करो, विजुअलाइज करो, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था वैसे। नेक्स्ट, यस, दिस वन।
यस, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेल मी। आपको मैंने एक पेटल वाला क्वेश्चन कराया था, डू यू रिमेम्बर दैट और नॉट? पेटल वाला क्वेश्चन, प्लीज टेल मी, हैव यू डन और नॉट? कैसे करेंगे? Yes, कुछ ma'am. आइडिया लगा? तो इसका बताओ कैसे करेंगे। मैम आई थिंक पहले हम 1/4 ऑफ अ सर्कल का एरिया निकाल लेंगे इधर, ठीक है। फिर उसके बाद इधर जो स्क्वायर है उसमें हम अगर उसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करें, 2 राइट ट्रायंगल्स में, हम्म तो हम उसमें से एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। फिर एरिया ऑफ 1/4 ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल will give us the area of half of that petal. यस, हाफ ऑफ दैट पेटल। पर हमें तो ये वाला एरिया निकालना है ना, ये एरिया इतना ही निकालना है। हुआ था अभी। इतना ही हुआ था, तो ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे? और कोई बताओ। और कोई बताओ कैसे निकालेंगे ये? शेडेड एरिया कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शेडेड पोर्शन? मतलब जो ग्रीन से मैंने शेड किया है वो वैल्यू कितनी आ रही है?
देखो इतना अगर ये तो आप इजीली निकाल लोगे, पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर बाई 4 माइनस half base into height, half base into height, 8 into 8. ये आपका शेडेड पोर्शन निकला है। मैम हाफ लीफ का एरिया। हाफ बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया माइनस किया है ना, इस क्वाड्रेंट में से मैंने ये ट्राइंगल का एरिया माइनस किया है, तो मेरा ग्रीन शेडेड पोर्शन निकला है। ठीक है, चलो एक चीज और देखते हैं इसमें। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। Yes, anybody is getting this one or not? Yes, how to solve this one? ऐश्वर्या, आपने आंसर 88 इसी का दिया है? नो मैम, इससे पहले वाले पहले वाले का। ये किसी को आ रहा है क्या? बिकॉज आई एम ऑल्सो गेटिंग कंफ्यूज्ड कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैम आपने जो पहले पूछा था वो हाफ लीफ का कितना आएगा? हाँ, वो हाफ मेरा लीफ कितना आ रहा है? हाफ लीफ का हाफ लीफ का आ रहा है 16 पाई माइनस 32। पाई नहीं, पाई की वैल्यू रख के बताओ। पर ठीक है, वो तो चलो आ रहा है, बट हम कैसे निकालेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे ना, दैट इज द थिंग। इसके बाद हम कैसे करेंगे? मैम काफी लॉन्ग क्वेश्चन है ये। हाँ मतलब देखो, अब देखना पड़ेगा इसमें कुछ और कैसे फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि आंसर निकल आए। सो आई विल ट्राई दिस वन, है ना। आई विल कंसल्ट टू द अदर फैकल्टीज। ये हो जैसे ही हो जाएगा मैं आपको या तो ग्रुप में बता दूंगी इसका सॉल्यूशन, या फिर मैं आपको क्लास में बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। चलो भाई, ये वाला ट्राई करो। Again, what is the area of the region shaded in blue? The figures below are circle touching each other. Okay. 16 is the total length. चलो ये वाला देखो। आई होप ये तो इजी है, ये कर लोगे आपने। ये तो इजी है, ये कर लोगे, आई नो। ऐसे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको।
मैम रेडियस विजिबल नहीं है थोड़ा, डायमीटर। मीटर इज 16। देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। दिस इज 16, आर यू गेटिंग? दिस इज 8 एंड अगेन दिस इज 8। चलो अगेन सेम ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ये आपका 1 हो जाएगा, इसका रेडियस 1 हो जाएगा, इसका रेडियस आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, नो 1 सेकेंड। 3, 6, 7, 8। मैम 7/2 होगा। 1 मिनट। यस, 1 मिनट। 7/2 कैसे होगा? आपने मैम छोटा सर्कल का जब अगर 1 होगा 8 तो माइनस फिर 1, ठीक है ठीक है। 8 यहाँ से यहाँ हुआ है, 8 ये टोटल था यहाँ से यहाँ तक, एंड देन 1 माइनस कर देंगे 7/2। यस, एंड देन यहाँ पे भी सेम ये है, तो इसका रेडियस ये, इसका 1 है, एंड देन फुल का है आपका 8, है ना, बड़े वाले सर्कल का। बड़े वाले सर्कल का एरिया में आप क्या माइनस करोगे? ये छोटे वाले 4 पहले तो सर्कल्स माइनस करोगे, एंड देन दिस स्मॉलर वन। आपका इजिली आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो जल्दी। मैम बड़े सर्कल का रेडियस हम 3 पकड़ के नहीं कर सकते। 3 पकड़ के नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है? हमारी पूरी 8 है ना। 8 अगर हम मान के चल रहे हैं तो इसको अगर हमने जस्ट 1 ले लिया, आप ऐसे समझो कि ये कुछ ऐसा सर्कल बन रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस ये देखो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो इसको तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने 1 लिया है तो आप माइनस करोगे ना उसमें से। ये पूरा तब भी नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ आपका कम पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपने अगर इसको 1 लिया है तो ये सब्ट्रैक्ट 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका टोटल 7 आ जाएगा, है ना। ये अगर टोटल 7 हो जाएगा तो रेडियस इसकी 7/2 हो जाएगी। हम 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 44, ठीक है। अब आंसर तो इसका पता नहीं है, बट अगेन ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी रेस्ट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्राई करना इसको सॉल्व करने का, नहीं होता है देन आई विल आस्क टू दी अदर फैकल्टीज एंड देन हम इसको देखेंगे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बिकॉज वी हैव सम टाइम। ट्राई दिस वन इज इंटरेस्टिंग।
Yes, so what they are saying, the figure shows the front view of the convex lens, which originally had only one edge. 5 holes of the different shapes, namely triangle, square, pentagon, hexagon, and circle, were drilled through it at the points P, Q, R, S, T. तो P में क्या है आपका? Triangle, Q में square, R में pentagon, S में hexagon और T में आपका circle. Such the way holes were parallel to each other, perpendicular to the edge, and all the holes were still within the lens edge. What is the total number of the edges in the lenses after the holes were drilled? So आपको ये बताना है कि after the holes were drilled, how many edges were there, right? अच्छा, ये क्या है आपका? एक convex lens है. Convex lens साइड से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, है ना? ऐसे करके होता है. फ्रंट से देखोगे, इधर से देख रहे हो तो ये ऐसे दिखेगा. इट मींस इट इज हैविंग ओरिजिनली वन एज, और वो दिया भी हुआ है. जब हम होल क्रिएट करते हैं, चाहे आप जैसे वॉल वगैरह पे होल क्रिएट करते हो, सो इट विल फॉर्म अ व्हाट? प्रिज्म. ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं कि प्रिज्म क्रिएट होगा? ये क्लियर है? यस मैम. ठीक है. प्रिज्म क्रिएट होगा तो एजेस का फॉर्मूला लगा दो. एजेस का तो फॉर्मूला मैंने बताया नहीं, तो आप देखो कैसे निकलेगा एजेस का फॉर्मूला. अगर हम बात करते हैं स्क्वायर प्रिज्म की, है ना, दैट इज अ क्यूबॉइड, तो स्क्वायर इस कितने हो जाएंगे? इधर 4 एजेस और इधर 4 एजेस. 4 into 3 दैट इज 12. ठीक है. इसी तरह ट्रायंगुलर अगर है प्रिज्म तो 3 पीछे एजेस बन रही हैं, 3 फ्रंट में बन रही हैं, 3 यहाँ बन रही हैं, यानी कि 3n is the formula. So 6 into 3, 4 into 3, 4 into 3, 3 into 3, एंड सिलेंडर में आपको पता है 2 एजेस होती हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 6 into 3, और यहाँ पे 5 है एक्चुअली. दिस इज पेंटागन, तो 5 into 3. Add them and then also add one of the original line, original edge, and then you'll get the answer. Is it clear? क्लियर है सबको? अभी एक दिन और ये टॉपिक करना है हमें, बिकॉज सम क्वेश्चंस आर रिमेनिंग. उन सबको करके एंड देन ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक. किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम. चलो, सो ठीक है. डाउट होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना. बाकी ठीक है, जो हमने क्वेश्चंस देखे उसको फिर से आप रिवाइज कर लेना. प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लगाना शुरू कर दो. कुछ डाउट होता है, यू कैन आस्क इन द क्लास. ऑलराइट एवरीवन? ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर.